Hello friends, how are you? Welcome to Tripanasi Center. Let's see what is our topic today. Energy resource. There is the most important topic here. We have already has been using different form of energy obtained from the various source of our daily activity like a cooking, heating and plumbing, transportations and lighting etc. For example, the heat energy required for the cooking purpose is obtained from firewoods and kerosene, oil, coal, electricity and the cooking gas is a LPG. LPG is a liquefied petroleum gas. There is a LPG liquefied petroleum gas here and we use animal powder, house, block, etc. for transportation and for running manner or mechanical device like the Parisians wheels and the irrigation of the running and coals and for the excited to the oil from oil seeds. The different form of this energy are obtained from the various source. We will be discuss about them details and the first types of energy source here. The types of energy source, there are two main category of energy source. First is a conventional source of energy, which are easily available and has been is a use for the long time. And second is a non-conventional resource of energy that are other than to the usually are that are different from those of common practice. There is a here a summarize is a both about category energy resource. The various type of energy source here. The here is the conventional energy and non-conventional energy here. The first conventional non-conventional energy is a mostly fossil fuel is a found under to the ground. There is a mostly non-fossil fuels see above the ground and their solar energy, hydro energy, wind energy, nuclear energy, hydrogen energy, such as geothermal energy and biogas. There is a non-conservation of energy. Example here the conventional non-renewable energy is a coal, oil and natural gas. And the other side the conventional renewable energy is a firewood, cattle dungs and farm vegetable base and wood is a coal etc. There is a conventional source of energy. The conventional source of energy has been to the use since the same time. The most important among them are the fossil fuel. There fossil fuel here. The fossil fuels are the fossil fuels remaining of plant and animal which over million of year has been transported into the coal and petroleum product and natural gas. There is the most important is a coal. Coal is the most abundant fossil fuel. It's a widely used of combustion of the cookings and the industrial activity. And there are different types of coal product such as the coal gas, coal tar, benzene, toluene, etc., which are the used for the various purpose. And next is the oil and the natural gas are formed from the plant and animal which one land in their tropical seas. And the oil is a petroleum is a source of countless and product. Apart from a petrol, diesel and other fuel is a petroleum products include a lubricant, waxes, solvents, dye, etc. The petroleum reserves are supposed to last to another 100 years or so. And the next is the natural gas. The natural gas is often found with the petroleum, the gas mainly containing of methane, methanes. Apart from to the serving and the fuel is the server industry. It is a beginning increasing use of domestical fuel in many countries, including India. United States of America is the largest producer as well as a consumer of national is the natural gas. And nowadays is the big cities and the town it is a begin supplied through the pipeline which is called to the piped natural gas mean PNP. Then natural gas also use a fossil run of the vehicles is known as the compressed natural gas means CNG. It is accepted as the economically and the less polluted fuel in for transport. There is a liquefied petroleum gas, means LPG is a common cooking gas used in Indian homes. It is a mixture of the propane and the butane gas are kept under pressure in the liquid form. But they are burned to the gaseous form. This gas is made available for a specific container and domestic as well as industrial use. It is a byproduct of petroleum refinerings. उसके पश्चात हमारे समक्ष है ऊर्जा संसाधन। देखिए ऊर्जा संसाधन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अनेक स्रोत से प्राप्त विभिन्न प्रकार की ऊर्जा स्रोतों का अपने दैनिक क्रियाकलापों जैसे कि खाना पकाना,
काम करने, खेत जोतने, यातायात, प्रकाश करने आदि के लिए उपयोग करते रहे हैं। उदाहरण के लिए पकाने के उद्देश्य के लिए हम ऊर्जा के लिए लकड़ी, केरोसिन तेल, कोयला, विद्युत एवं कुकिंग गैस, द्रव्य पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी हो प्राप्त होता है। हम पशु जो है शक्ति, घोड़ा, बैल आदि का भी प्रयोग यातायात की सिंचाई और छोटे यांत्रिक उपकरणों के चलाने के लिए, जैसे खेती के लिए रहट यानी वेल्स चलाने के लिए, फिर तौलिए बीजों से तेल निकालने के लिए, कहू चलाने के लिए करते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था। कहते हैं ये जो है, जो हम कहते हैं बैल हो, घोड़ा हो, कई मायने में इम्पोर्टेंट थे, लेकिन शायद इसके भी इम्पोर्टेंस आज के समय में ख़त्म हो गया है। अलग अलग प्रकार की ये ऊर्जाएं अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होती है। हम इसका विस्तार से जानेंगे और जानेंगे कितने प्रकार के जो है ऊर्जा के संसाधन है। अगर देखा जाए तो ऊर्जा के स्रोत जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत यानी कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी। ये आसानी से उपलब्ध होते हैं और लंबे समय से प्रयोग में लाए जा रहे हैं। दूसरा जो है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में जैसे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सामान्य रूप से व्यवहार में लाए जाने वाले ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत हैं। अब यहाँ पर हमारे समक्ष जो है विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत के बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये सोर्स कैसे प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पर एक टेबल है जिसमें परंपरागत और नवकरणीय ऊर्जा दिखाया गया है और परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। अगर देखा जाए परंपरागत और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत देखा जाए तो अधिकांश जीवाश्म ईंधन भूमि के भीतर पाए जाते हैं, उदाहरण कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस आदि। और परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा देखा जाए तो ये भूमि के ऊपर अजीवाश्म ईंधन के रूप में पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए लकड़ी, गोबर, कृषि, वनस्पतिक अवशिष्ट, लकड़ी का कोयला आदि। अगर गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में देखा जाए तो इसमें सौर ऊर्जा आ जाता है, जलीय ऊर्जा आ जाता है, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, भूमतापीय ऊर्जा और भी बहुत है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। यहाँ पर सबसे पहले आता है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। पहले हम परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की चर्चा करते हैं। इसका उपयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। उनमें बहुत से सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है जीवाश्म ईंधन है। अंत हम जीवाश्म ईंधन के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन। कहते हैं जीवाश्म ईंधन पादपों एवं जंतुओं के जीवाश्मिक अवशेष है जो लाखों वर्ष में कोयला और पेट्रोलियम उत्पाद के प्राकृतिक गैस में रूपांतरित हुए हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं जीवाश्म ईंधन को बनने में लाखों करोड़ों साल लगा था। कहते हैं लाखों करोड़ों साल, आपने डायनासोर के बारे में जाना ही होगा। कहते हैं अगर मान लीजिए उसी प्रकार के जीव जंतु रहे हों और किसी कारणवश वो मर गए तो उनके बॉडी में जो होता है तेल होता था, और ये तेल जो है धीरे धीरे अपघटित होके कोई जो है पेट्रोलियम और तेल के रूप में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम आज जो है आश्वन विधि द्वारा विभिन्न तापों पे जो है इनको अलग अलग फॉर्म में करते हैं। कहते हैं अगर कच्चा तेल जो है नॉर्मली होती है उसमें ही पेट्रोल, उसी में डीजल, उसी में केरोसिन और उसमें कोलतार प्रेजेंट होता है, तो इसको आश्वन विधि द्वारा जो है हम अलग अलग करते हैं। लेकिन इसको बनने में लाखों करोड़ों साल लग गया। पादप में भी ऐसे ही हुआ। मान लीजिए कि कहते हैं कि बहुत जल्दी आग लग जाता है बनों में, तो हो सकता है उस समय भी बनों में आग लगा हो और सारे वन जल के राख हो गए हों। तो जब वन जल जाते हैं और अधजला वन जो होती है और लाखों साल धरती के अंदर दब जाती है, तो इसमें जब प्रेशर पड़ता है तो ये कोयला के रूप में जो है कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये कठोर हो जाता है और ये जो है बंजर बन जाती है। तो इसको बनने में लाखों करोड़ों साल लगा है। अब देखिए जिस प्रकार से हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये अपने ख़त्म होने के कगार पे आ गया है, तो आप कैसे इसको बना सकते हो, सोचने वाली बात है। इसको बनने में जब लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं तो लाखों करोड़ों साल हम कैसे इसको संरक्षित करेंगे और कैसे इसको बचा के रखेंगे, शायद ये संभव नहीं है। आगे है कोयला। तो क्या कोयला जो है सबसे प्राचीन जीवाश्म ईंधन है। यह पकाने व औद्योगिक गतिविधियों में दहन के लिए प्रयुक्त होती है। कोयले के अनेक उत्पाद हैं जैसे कोयला गैस, कोल तार, बेंजीन, टाइगलिन्स आदि अनेक कार्य के लिए ये उपयोग किया जाता है। उसके पश्चात है तेल एवं प्राकृतिक गैस। देखिए ऑयल और नेचुरल गैस जो होती है उन पादपों व जंतुओं से बनती है जो किसी समय उष्णकटिबंधीय समुद्र में रहते थे। तेल या पेट्रोलियम अनियमित उत्पादों के स्रोत रहे जैसे पेट्रोलियम, डीजल, अन्य ईंधनों के अलावा पेट्रोलियम उत्पादों में स्नेक यानी लुब्रिकेंट, मोम, विलायक, रजक, डाई आदि भी आते हैं। पेट्रोलियम भंडार आगामी करीब कहते हैं 100 वर्षों या कुछ अधिक समय तक चल पाएंगे, उसके बाद ये सदैव के लिए ख़त्म हो जाएंगे।
कहते हैं कि प्राकृतिक गैस अक्सर पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। इस गैस में मुख्यतः मीथेन पाई जाती है। विविध उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग होने के साथ साथ भारत सहित अनेक देशों में घरेलू ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी है। अब देखिए, अमेरिका जो है ये सबसे अधिक उत्पादक भी करता है और सबसे अधिक उपभोग भी करता है। तभी तो यहाँ के जो कहते हैं विश्व में अमेरिका सबसे ऊपर बना पड़ा है। आजकल बड़े शहरों और कस्बों में गैस पाइपलाइनें द्वारा भेजी जा रही है, जिसे CNG यानी पाइप नेचुरल गैस यानी पाइप नेचुरल गैस के नाम से जाना जाता है। कहते हैं प्राकृतिक गैस वाहनों को चलाने के लिए भी ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। इसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस नेचुरल गैस भी कहते हैं। ठीक है, इसे परिवहन के लिए जो है मित व्यय यानी सस्ते एवं कम प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन के रूप में आज उपयोग किया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस जो होती है CNG का बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है। जहाँ पर ये सस्ता है वहाँ पर जो है इसका प्रदूषण भी नहीं फैलता है। कहते हैं द्रव्य पेट्रोलियम गैस जो भारतीय घरों में सामान्य उपयोग किया जाने वाला खाना पकाने की गैस है। यह प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का मिश्रण है, यानी प्रोपेन CH4 का जो है ये मिश्रण है। इसे उच्च दाब पर द्रवीकृत अवस्था में रखा जाता है, लेकिन यह गैस अवस्थाओं में जलती है। इस गैस के घरेलू उद्योग उपयोग के लिए एक विशेष बर्तन यानी कंटेनर में उपलब्ध कराया जाता है। यह पेट्रोलियम प्रकृत सलाहों का एक उत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट होता है।